ঠিক আছে। তো আমরা ওই কাল যে আমি পুনাতে ছিলাম ওই কেসটা বলেছি, তাই তো? এখন একটা 24 মেয়ে, মুখের উপর না ভিটিলিগো হয়ে গেছে, সাদা সাদা হয়ে গেছে, একদম বড় বড়, ছোট ছিল না, মানে দেখতে ভালো লাগতো না। আর ওই দিদার সঙ্গে থাকে, মার সঙ্গে থাকে না, দিদা ওকে নিয়ে আসছে, দিদার সঙ্গে থাকে, যখন কোথাও যায় দিদার সঙ্গেই যায়। এখন কি হয়েছে, ও দিদা ওকে নিয়ে আসছে আমার কাছে, নিয়ে আসে, জেনেছে যে ওখানে বিয়ে নাই, তো বলেছে যাও। তাহলে আমি জাস্ট ওকে জিজ্ঞেস করছি, বাতাও क्या हो रहा है, ওই মেয়েকে দেখছি আমি, কিন্তু এমনি জিজ্ঞেস করলাম क्या हो रहा है। পেশেন্ট कोई जवाब नहीं दे, মানে কিছু বলছিল না, একদম বসে আছে চুপ করে, कोई जवाब नहीं दे रही थी। बहुत पूछने पर सर हिलाकर थोड़ा बहुत जवाब दे रही थी, একটু মানে অনেক কথাটা জিজ্ঞেস করলো, অনেকবার জিজ্ঞেস করার পর একটু কিছু কিছু কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতেছে, জবাব দিচ্ছে। তাহলে ওর যে দিদা নানি, হ্যাঁ নানি, ও বলছে डॉक्टर साहब ये तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहती, মানে আমার সঙ্গে আসতেই চায় না, হ্যাঁ কোথাও নিয়ে যাবো আসতেই চাবে না, आना नहीं चाह रही थी। इतने में अचानक फट করে ও বলছে, হ্যাঁ দিদা এরকম বললো, মানে নানি এরকম বললো যে डॉक्टर साहब ये मेरे साथ आना ही नहीं चाहती। আরে ও ইনস্ট্যান্ট মানে रिप्लाई করেছে, फटाक করে बोल पड़ी कि अंकल रास्ते में आते समय जो भी लोग मिलते हैं नानी उससे बातें करने लगती है। রাস্তায় যখন আসছে তো কোনো সঙ্গে একটু কথা বলা শুরু করেছিল, কাউকে দেখলো জানা লোক, অনেক পুরানো লোক, এখানকার লোক, কেউ রাস্তায় দেখছে, সঙ্গে দেখা হয়েছে, তো কথা শুরু করেছে। रास्ते में आते समय जो भी लोग मिलते हैं नानी उनसे बातें करने लगती, मैं उनसे दूर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। আমি কি করি, আমি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, নানির কথাটা শেষ হলে আমরা যাব, সঙ্গে থাকি না। এটাই আমাদেরকে ভাবতে হবে, কেন সঙ্গে থাকে না। এখন কোনো আসার সময় সঙ্গে আসতেছে, কিন্তু যদি কোনো জানার লোক চলে আসে আর নানি ওর সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে, তাহলে আমি কি করি, উনসে দূর যাকার খড়ি হয়ে যাতে, আমি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যে নানি কথাটা শেষ হবে তাহলে আমি যাই। এটাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, কেন ওখানে গিয়ে why she is doing like this, है ना, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मेरे प्रति दया दिखाते, है ना। ওরা কি করে, আরে কি হয়েছে, দেখো তো মেয়ে ছেলে, হ্যাঁ ওর মুখে এরকম হয়ে গেছে, বিয়ে কি করে হবে, কেমন দেখতে লাগতেছে, এইসব কথাটা বলা শুরু করে। वो लोग मेरे प्रति दया दिखाते, ये लोग मेरे बारे में बातें करने लगते, ওরা আমার মানে আমাকে নিয়ে কথা টথা বলা শুরু করে দেয়, সবাই বলে আরে ভালো ডাক্তারকে দেখাও, এই মানে ওর কথাটা বলা শুরু হয়, তাই জন্য কি করে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, बातें करने लगते हैं, बोलने लगते हैं लड़की है ठीक से इलाज कराओ, इसलिए मैं वहां से हट जाती हूँ, ठीक है। बहुत गुस्सा आता है, मैं जस्ट আমি জিজ্ঞেস করলাম कि तुम क्या करती हो, तो जैसे दानी वो लोग बात करने लगते हैं, तो तुम क्या करती हो, तुम मेरे को दया दिखाते हैं और मेरे को बहुत गुस्सा आता है,
अच्छा नहीं लगता जब मुझसे बातें करना चाहते। এখন ওরা আমার সঙ্গে কথা শুরু করে দেয় বলতে। তাহলে আমারও খুব রাগ হয়, খুব गुस्सा आता है मेरे को। এইটাই আমি बस আর কিছু কথা ছিল। तुमको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है? এইসব কথা যে নরমাল হয়। কিন্তু এখানে কি হলো যে ওর नानी बोलছিল, नानी ने बताया कि तो आना ही नहीं चाह रही थी। ये मेरे साथ तो आना ही नहीं चाह रही थी। তখন ওই মেয়েটা फट করে বলল। ঠিক আছে? डॉक्टर साहब रास्ते में आते समय जो भी मिलता है মানে ওর যে ইনস্ট্যান্ট রিঅ্যাকশনটা ওই হচ্ছে অ্যাব্রাপ্ট। ঠিক আছে? অ্যাব্রাপ্ট হার্শ। একদম মানে राग করে বলছে। हार्श हो गया से नानी ने नानी के लिए वो उसके मुंह में वो क्या किया, खूब गुस्सा करके बात किया। तो यहाँ पे क्या क्या रूब्रिक लेंगे, वाई में जाना है, क्यों वो लड़की दूर जाके खड़ी हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूब्रिक मिलेगा कि क्यों दूर जाके खड़ी होती। ठीक है ना? तो फियर टॉकिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम। फियर पीपल লোককে দেখে মানে ভয় পায় কি ইয়ে আমার সন্দর্ভে কথাগুলো বলবে, তাই জন্য ভয় পায়, যায় না ওখানে ওদের সামনে। ঠিক আছে? ফিয়ার টকিং, পিপল আর टॉकिंग अबाउट हिम। ठीक है? क्यों नहीं जाना चाहते? Why she doesn't want to go? Because of this fear कि अब मैं जाऊंगी वहां। और फियर क्या होता है? सर्टेन होता है, मालूम है कि ये होने वाला मेरे साथ, तो वो डर होता है। जैसे बाघ आ गया, हाथी आ गया तो आपको मार देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो डर है ना, इसलिए आप नहीं रहते, वहां से भाग लेते हैं। तो यही चीज है यहाँ पे, ये इसको बातें वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहां से हट लेती है। ठीक है? वे लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। और फियर गेट टॉक्ड अबाउट, देखो फियर गेट टॉक्ड अबाउट, ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत ध्यान, इस मैंने खूब गुरुत्व देता हूँ। फियर गेट टॉक्ड अबाउट, फियर गेट टॉक्ड अबाउट टू। ঠিক আছে? মানে मेरे बारे में बात होगा, আমার সন্দর্ভে কথা হবে। ঠিক আছে? टॉक्ड अबाउट टू। ठीक है? अबाउट मेरे बारे में। अबाउट का क्या होता है? किसी को अबाउट टू गो, मैंने हम जाने के लिए तैयार है ना? ट्रेन इज अबाउट टू गो, मैंने हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेन के संदर्भ में बात कर, ठीक है ना? तो ये रूब्रिक को बहुत ध्यान से समझना है, इसीलिए मैंने ये रूब्रिक लिया उसका। और सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशन टू ऑल, ये सब साइड में, मतलब सपोर्टिंग रूब्रिक है, बट मेन रूब्रिक क्या है? फियर टॉकिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम, और फियर गेट टॉक्ड अबाउट टू, ये दो मेन रूब्रिक यहाँ। ठीक है ना? So here people talking about him. People এই রুব্রিকটা এর মধ্যে তো না, এর মধ্যে নাই। ফিয়ার তো যাও, ফিয়ার তো খুলছি স্যার। ফিয়ার পিপল टॉकिंग, ফিয়ার পিপল আন্ডারে টকিং তো নাই, ওটা বোধহয় टॉकिंग है ফিয়ার ওইটা আছে স্যার। टॉकिंग, फियर टॉकिंग না, টকিং এর আন্ডারে একটা রুব্রিক আছে স্যার, ফিয়ার টকিং কিল হার অ্যাজ ইফ টকিং লাউডলি। ওকে, তো কমপ্লিটলি পড়তে হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফিয়ার গেট টকড অ্যাবাউট, এটা আছে, ফিয়ার গেট টকড অ্যাবাউট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আছে, এটা আছে। আর সেনসিটিভ এক্সটার্নাল ইমপ্রেশন টু অল, এই কেসটা বুঝে গেছো তো? হ্যাঁ, কেসটা বুঝে গেছো না? বাস এইরকমই আমরা ওই
ওই কথাতে যেতে হবে, why she is not coming with her grandmother. क्यों? ঠিক কেন যে ওকে লোক ওর সন্দর্ভে কথা বলে। আর যদি আমি নানির সঙ্গে থাকি তাহলে কি করবে, আমাকে দেখে দেখে সব বলবে আরে কেমন লাগছে, একটু ভালো ডাক্তার দেখাও, না ওর সন্দর্ভে কথাটা হবে। ঠিক আছে, হুম হ্যাঁ হুম এইটাই। আর সেন্সিটিভ এক্সটার্নাল ইমপ্রেশন টু অল, কথা বলবে আমার জন্য, এইটাই হচ্ছে সেন্সিটিভনেস। আর সেন্সিটিভ লাইট টু, এইসব সাপোর্টিং দেখবি। delusion insulted he is, ঠিক আছে, বুঝে গেছো তো? হুম delusion insulted he is. আর fear opinion of others, লোক নিজের অপিনিয়ন দেওয়া শুরু করে দেয়। ठीक है। नक्स का क्या होता है, नक्स पेशेंट को दूसरे का एडवाइस नहीं चाहिए, ओपिनियन नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपने आप को अपने अपने मेहनत से अपनी बुद्धि से काम करता है। बेसी वो अपना मन अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है, दूसरे का ओपिनियन नहीं चाहिए। दूसरा कोई ओपिनियन देता है तो गुस्सा आता है, इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए कंसोलेशन एग्रवेट्स। ठीक है, ठीक है। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, ठीक है ना। হুম ये इतना सारा रूब्रिक, इतना सा कन्वर्सेशन में आपके पास इतना, एक्चुअली मेनली मैं ये रूब्रिक में गया था, फियर गेट टॉक्ड अबाउट टू, वहां से मेरे को ये सब मिलना शुरू हो, क्योंकि थोड़ा सा सोचना है, व्हाई शी इज नॉट कमिंग विथ हर ग्रैंडमदर। ठीक है, और अगर उनके साथ खड़ी रहेगी तो क्या होगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे, उसके प्रति दया दिखाएंगे, है ना। बच्चा है 10 साल का बच्चा है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पूरे चेहरे पे हो रखा है उसका। पेशेंट वांट्स टू रिमेन इन ए tranquil state, so when you want to disturb that tranquility by asking him question, he becomes angry। ठीक है ना, ये है एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। बहुत बार मैं देखा हूँ पेशेंट से कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जब पूछते शुरू कर देते हैं ना, तब उसको लगता है कि यार ये क्या क्या पूछे जा रहे, एक ही बार गुस्सा करे, क्या क्या पूछते रहते हैं डॉक्टर साहब, बिना मतलब का क्वेश्चन पूछ रहे, मेरा यहाँ सर दर्द हो रहा है या मेरा ये प्रॉब्लम है और आप फालतू फालतू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं चाहिए। इससे क्या मतलब है, मेरे को बहुत बार ऐसा स्पेशली लेडीज लोग ना इस तरह से बोला है, क्या फालतू फालतू কথা মানে কি ফালতু কথা বলতেছেন ডাক্তার বাবু, আমার এখানে মাথা ব্যথা মাথা হচ্ছে, আপনি এই ফালতু কথা বলে যাচ্ছেন, আমাকে ওষুধ দেন, এরকম। ঠিক আছে, এরকম কোনোদিন হয়েছে? তখন কি হ্যাঁ এরকম এরকম একবার এরকম হয়েছে, হয়নি এমন না। আচ্ছা, আমরা তো তখন ফিজিক্যালি জিজ্ঞেস করতাম না, হ্যাঁ তো লোকের অনেক লোকের মনে হতো যে কি কথা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ হম হ্যাঁ এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, জিজ্ঞেস করো, খুব পেশেন্ট পার্টিও জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ, এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করতেছেন এগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। হুম, এরকম তো একদম রাগ হয়ে বলবে, ঠিক আছে, এমনি ধীরে বলবে না। What? হ্যাঁ দু একজন क्या দু पूछते একজন রাগেও যায়। फालतू बात, यहाँ मेरा सर दर्द हो रहा है और आप मेरा सर और सर दुखा रहे है मेरा, ऐसा क्वेश्चन पूछ के दवाई दीजिए मेरे को, यही एंगर অ্যান্সার when obliged to, মানে আপনি ওকে প্রভোক করতেছেন না, আমরা প্রভোক করতেছি যে আমাকে আনসার চাই, তুমি বলো কিছু, হ্যাঁ ঠিক আছে। बुखार या सर दर्द का रोगी है
उसकी बीमारी से संबंधित प्रश्न जब पूछते हैं तब वो अपने हाव भाव से हाथ हिलाकर या गर्दन हिलाकर आपके 1-2 प्रश्न का उत्तर तो दे देता है, जबकि उससे भी वह चिड़चिड़ा होता रहता है। जब 1-2 प्रश्न उसको सर दर्द हो रहा है ना, उसको शांति नहीं है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, सर दर्द उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब चूंकि डॉक्टर के पास आया है, इसलिए थोड़ा देर के लिए तो उसको बोलना है, आंसर करना है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन का आपको आंसर दे देगा। फिर ज्यादा क्वेश्चन जहाँ हुआ उसको ज्यादा इरिटेट हो गया, तब क्वेश्चन पूछते समय दिखेगा आपको कि ये इरिटेट हो रहा है, लेकिन आपको तो वही मेडिसिन के लिए क्लू मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेडिसिन देना है, ठीक है। अगर आप उससे और प्रश्न बताने के लिए दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वह एकदम से चिढ़ जाता है और बोलता है कि आपको दवाई देनी है तो दो, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है और आप पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड, आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि वो आंसर दो भाई मेरे को, जबकि उसको क्या हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन का आंसर तो किसी तरह से दे दे रहा, लेकिन वो ज्यादा जहाँ उसके दिमाग पे और डिस्टर्ब हो, किसी तरह से शांति के लिए बैठा हुआ है, शांत करके अपने आप को, अब जहाँ आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसका शांति ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो जो बोलते हैं ना, जब एकदम से भड़ाक से बोलेगा, तो ये है अब्रप्ट और आंसर एंगर आंसर विद ऑब्लाइज्ड, ठीक है जी? ठीक है ना। चलो, एक लड़की है 15 साल, 15 ईयर्स, 9th क्लास से पढ़े, और चेन्नई से उसका ब्रेन ट्यूमर हुआ था और चेन्नई से ऑपरेशन कराकर आई थी। बस चलो चेन्नई চলে গেছে, ওখান থেকে অপারেশন করে পাঠাইছে, পুরোপুরি তো করবে না, ব্রেন টিউমার অপারেশন 1 বছর হয়ে গেছে। ব্রেন টিউমার করা, মাঝে মাঝে যায় रिव्यू करार जन्य। 1 साल हो गया चेन्नई से एलोपैथिक दवा लगातार खा रही है। एलोपैथिक वही टैबलेट और नाम वही क्या है, कैप्सूलটা ওর মনে হয়ে গেছে, মুখস্থ হয়ে গেছে, वो याद हो गया उसको। 1 साल से वो कैप्सूल खा रहा है, वो एमजी सब याद हो गया, पढ़ा लिखा बच्चा है, एलोपैथी लगातार खा रही है। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে क्या हो रहा है, কি হচ্ছে তোমার? तो बोल रही है पेशेंट, सर में माथा में अजीब सा लगता है, सर में अजीब सा लगता है। हाँ, पढ़ाई के समय मैं लिखना कुछ चाहती हूँ पर लिख कुछ और जाता है। পড়ার সময় কি বলছে যে मैं लिखना कुछ और चाहती, কিছু और लिखते চাই, हाँ, किंतु लिखे दी কিছু और। मतलब क्या कि मैं लिखना, जैसे मान लो राम लिखना है तो कुछ और लिख जाएगा, या कोई वर्ड लिखना है वो नहीं लिखेगा, दूसरा चीज लिख जाएगा हाथ से। मतलब क्या, हैंड ब्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाथ और ब्रेन में। आप सोच रहे सही चीज कि मेरे को लिखना है, लेकिन हाथ से कुछ और लिख जाता है उसका, समझ गया। जैसे कोई वर्ड पढ़ती हूँ और लिखने समय वो वर्ड लिखा ही नहीं जाता, कुछ और ही लिख जाता है। बहुत गुस्सा, जी सुनो कैसा लगता है उस समय, बहुत गुस्सा आता है, ऐसे बहुत गुस्सा। मैं सब कुछ पढ़ ली, उसके बाद मेरे को लिखना है तो मैं लिखने लगती हूँ, तो वो जो पढ़ी हूँ वो मैं लिख नहीं पाती हूँ, मतलब लिखा ही नहीं जाता है। मालूम है मेरे को कि ये लिखना है, लेकिन ये लिखा ही नहीं जाता, दूसरा कुछ लिख जाता है, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और
যে ওকে জিজ্ঞেস করলো যে আর দর্দ के समय क्या करती हो? যখন মাথা ব্যথা হয় ওই সময় কি হুম ঠিক আছে যখন এরকম হয় মাথা ব্যথা করে इरिटेशन লাগে ওই সময় কি করো उस समय क्या करती हो दर्द के समय क्या करती हो चुपचाप रहती हूँ ठीक है चुपचाप रहती हूँ भाई बहन हल्ला करते हैं तो गुस्सा आता है ठीक है इरिटेशन होता है थप्पड़ लगाने का मन करता है टोका टाकी करते हैं अब छोटा छोटा भाई बहन है उसका वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं इसको चिढ़ाने के लिए सब छोटे भाई बहन है चाचा কাকু সঙ্গে থাকে ছোট ছোট আছে 15 বছর সব থেকে বড় মেয়েটা এটা ওর ছোট ভাই আর ওর কাকার মেয়েগুলো আছে মেয়ে আছে বা ছেলে আছে ওরা সবসময় ওকে ই করে মানে टोका-टाकी करते रहते हैं उसको चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं अब बच्चे हैं खेलते कूदते ऐसे इस तरह से करते रहते हैं तो इरिटेट होता है भाई बहन हल्ला करते हैं तो गुस्सा आता है इरिटेशन होता है थप्पड़ लगाने का मन करता है मारो एक थप्पड़ टोका टाकी करते हैं और क्या नाम जी उसको मार की बोले 3 साल से यह कैप्सूल खा रही हूँ 3 বছর থেকে এই ক্যাপসুলটা আমি খেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে কিতনা খাও কত খাবো এরকম হ্যাঁ কত খাবো ডাক্তার मन ऊब गया है। खाते खाते ना एक तो ভাল লাগে না और खाने की इच्छा नहीं होती है पहले 250 mg की खाती थी अब 500 mg कर दिया है ये चलो रिव्यू करने खा खा कर परेशान हो गई ठीक है जी? कैप्सूल खा खा के परेशान हो गई हो ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहला रोग आपको दिमाग में क्या क्लिक करता है पेशेंट जब बात कर रहे हैं आप पेशेंट से तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है ठीक है वो पहले सबसे पहले देखना सबसे पहले ध्यान देना उस बात को कि ये सबसे पहला बात क्या है ये मेडिसिन ये कैप्सूल 1 साल से ऑपरेशन करने के बाद 1 साल से पहले 250 mg खाता था अभी हो गया कितना 500 mg 1 साल से खा खा के ये लड़की परेशान हो ये हो गया मन ऊब गया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगा था मेरे को उसमें कि तो क्या होता है सबसे पहला रुब्रिक मैंने लिया इनोई बोर हो गया खा खा के क्या होता है या कोई भी काम कर करके बोर हो जाते हैं नया कुछ चाहिए नया तरीका चाहिए कुछ डेली एक ही काम है ना और नक्स को हम लोग कैसे देते हैं एलोपैथिक मेडिसिन पहले जो मेडिसिन खाया हुआ है उसका ये करते हैं ना फिर हाँ उसको नलीफाई करने के लिए या उसका असर को मेडिसिन के असर को खत्म करने के लिए पहले जनरली लोग यही करते थे पहले एक डोज पहले नक्स दे दो फिर पहले जो जो मेडिसिन खाया वो सब खत्म हो जाएगा उसके बाद दवाई करेंगे और दूसरी दवा देंगे यही करते थे यही सीखा है मेरे को ऐसा लगा कि भाई यही बात है जो खा खा के आदमी परेशान हो गया एलोपैथिक दवाइयाँ तो उसके बाद जब आ रहा है तो जो लोग मतलब जो पहले के जो डॉक्टर होते थे वो इस बात को समझते थे कि ये बोर हो गया खा खा के तभी तो मेरे पास आया है लेकिन वो एक ऐसे फिजिकल सिम्टम की तरह लिख देते थे कि भाई ऐसे इसको पहले ये जब भी इस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन खा के कोई आए तो उसको पहले नक्स दे दो ठीक है ना तो यहाँ पे इसलिए इनुई सबसे पहला रूब्रिक इनुई लिया एंड भाई बहन क्या करते हैं डिस्टर्ब करते हैं तो गुस्सा आता है मारने का मन करता है
एक थप्पड़ लगाओ ऐसा गाल के ऊपर ना। मैंने बोला कहाँ? बोला गाल पे मारने का मन कर। ठीक है ऐसे। हाँ? तो डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग क्यों? वाई? ठीक है। क्या बोलती है? सर दर्द के समय क्या करती हूँ? चुपचाप रहती हूँ। तो क्या कर रहा है उसको? भाई लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्यों डिस्टर्ब अवर्सन है उसको? Why she doesn't want to be disturbed? ये सब थोड़ा-थोड़ा लिंक करना सीखना है हमको। ठीक है ना? कि क्यों कोई पेशेंट डिस्टर्ब होना नहीं चाहता? तो उसका लिंकिंग रूब्रिक क्या होगा? उसको हम कैसे लिंक करेंगे? उसका रीज़न क्या? व्हाई शी डज़न्ट वांट और कोई भी पेशेंट डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है बिकॉज़ क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। थोड़ा-सा हमको सोचना है, वही लगाना है। कोई भी चीज करते हैं, कोई भी पेशेंट के पीछे एक रूब्रिक जैसे हमने लिया, इनोई क्यों हुआ? वाई इनोई? है ना? क्योंकि वो इतना दवा खा लिया है कि वो बोर हो गया। दवा खाते खाते मन भर गया। ठीक है ना? मन में एकदम से ये हो रहा है, अब नहीं खाना मेरे को दवाई। लेकिन अभी चूंकि मेडिसिन दिया है तो खाते रहेंगे। ठीक है ना? हैं? ঠিক আছে तो স্যার। इसलिए हाँ স্যার একটা কথা বলি। এই সেদিন পরশুদিন, হ্যাঁ পরশুদিন বিকালবেলায় একটা রুগী আমাকে ফোন করছে। ফোন করে আমাকে বলতেছে যে ডাক্তারবাবু কোথায় আছেন? আমি বললাম আজকে বাড়িতেই আছি। বুঝলে? তো বললো আজকে বাড়িতেই আছি। বললো যে খুব সিরিয়াস, তো আসবো। তো আসবো কি? আসো। তো এবার আসার পরে দেখি কিছু আসতেছে না, তো আমি চেম্বারে যাবো। তো তারপরে দেখি বাড়িতে চা করতে বলছে, দেখি ওর মধ্যে আসছে। আয়সা আমাকে বলতেছে, দেখি দুটো ছেলে টোটোওয়ালা, একটা ছেলে এসে কলিং বেল দিচ্ছে। ছেলেটাকে চিনি না, অন্য দিকে বোধ হয়। বললো দাদা পাঠাইছে, দাদা আপনার কাছে আসতো। দাদা কোথায়? দেখি ভ্যানের মধ্যে শুয়ে আছে, মানে ভ্যান না তো টোটোর মধ্যে শুয়ে আছে, পাটা ইয়ে করে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। তো আমি দেখলাম, আমি বললাম যে ভিতরে ঢুকাও। পরে দেখলাম যে টোটোতে ঢুকতে পারবে না। ঠিক আছে নিয়ে আসো। তারপরে চেয়ারে বসাইছে। চেয়ারটা আমি তখন যে চেয়ারটা বসে বসে করতে পারতেছে না, আমার একটা বেড আছে, এই বেডটা আছে। তো আমি বললাম যে বেডটা তখন পরিষ্কার করছি করে শো। তো যে বলেছে মাথা ঘুরতেছে, ঢেক আসে, হ্যাঁ কখনো নড়াচড়া করলে মাথা ঘোরে, কখনো যদি ঘুরি এপাশ ওপাশ করি মাথা ঘোরে, উঠতে তো পারি না, উঠতে গেলে দুজন লাগে, মাঝে মাঝে বমি বমি আসে, মুখের ভেতরটা বিশৃঙ্খল হয়ে থাকে, মানে আর মানে তিতা হয়ে থাকে, ওই জায়গাটা এই কপাল থাকে সেই জায়গাটা পুরো চক্কর মারে। যেভাবে থাকি না কেন এই জায়গায় মাথার জ্বালাটা থেকে যায়। তো আমি প্রথমে গেছে আগে মাথা ঘুরে গেছে, আগে ব্রাইনিয়া দিলাম। তো আমি ব্রাইনিয়া 0 to জলে গুলে একটা ডোজ দিছি, ঠিক আছে? আমি চা খেয়ে আসি। তো বললাম 10 মিনিট পরে আমি ইয়ে দিছি দিয়ে, চা খেয়ে আসতে আসতে 10 মিনিট বেশি হয়েছে। ও দিয়েছিল সেটা আবার দিছে 2 বার। জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছো? বলে ভালো নাই, মানে খুব একটা কমে নেই কিছু। তো এর আগে ছেলেটাকে পেটে ব্যথা ছিল, তো বেলেডোনা দিয়েছিলাম 200। তো আমি ওকে আরেকটা ডোজ বেলেডোনা 200 বানিয়ে দিলাম। 200 বানিয়ে দেওয়ার পরে 5-7 মিনিট পরে 5 মিনিট পরে বললাম কেমন আছে? মাথা এদিক ঘুরে বলতেছে যে একটুখানি আরাম পেয়েছে, একটু, আরো 5 মিনিট থাকো। তারপরে আরো 5 মিনিট পরে ক্লাসে বানিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে কথার যে পয়েন্টটা আছে না, কিন্তু ওই সময় আমার মাথার মধ্যে এটা ক্লিক করলো না যে যে কোয়াইট ওয়ান্টস টু বি, হ্যাঁ
হোয়াইট ওয়ান্টস টু ট্রাঙ্কুইলিটি ডিজায়ার ফর। আমি শুধু এটা নিলাম ফিয়ার, ওই যে লিস্ট ফিয়ার মোশন লিস্ট অফ টনবিল আছে, ব্রাইনে আছে, মাথায় বসতে একটু উঠে গেলে তো ব্রাইনে দিলাম, তো কাজ হলো না। তো কিন্তু কথার যে পয়েন্টটা আছে, পয়েন্টের মধ্যে ওই বিনোদনে আসতেছে। তো আমি ওকে বিনোদনে 200 দিলাম, বললাম যে 200 দিলাম, বললাম যে অসুবিধা হলে ফোন করো। আর ওই ছেলেটা ওই 2 দিন আগে থেকে অসুবিধা হয়েছিল, আগের দিন রাত্রে, 2 দিন আগে আমার কাছে আসার 2 দিন আগে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাইছে, খায় কম হয়নি, পরে আমার কাছে আসছে। শেষে আমি আমার থেকে এখানে একটু পয়সা কম নেয়, অ্যালোপ্যাথিক কক ডাক্তার কম নেয়, তো ওর কাছ থেকে ওষুধটা নিছে আমার মনে হয়। তো তারপরে যখন ওখান থেকে খায় ওষুধ খেয়ে কমলো না, তখন দেখে যে এখন তো সিরিয়াস কন্ডিশন, এখন তো আমাদের হসপিটাল দেখতে লাগবে। হ্যাঁ, তো তখন আমার কাছে আসছে, কখনো আর ফোন করে নাই, আর ফোন করে নাই, মনে হয় কমে গেছে। পুয়ার ফিলিং আছে না, আমি উঠতে পারছি না। ও তো বলবে না যে আমি উঠতে পারবো না, আবে এইরকম যদি চলবে আগে আমি কি করে কাজ করব, ঠিক আছে? প্রবর্তী তো বললো না, প্রবর্তী করতে হবে তো, ব্রানিয়াতে প্রবর্তী করবে, আর চুজেস দ্য লেসার এভিল, ওইটা একটু দেখতে বার্গেন করবে, ঠিক আছে? ওইটা যে গেল ওখানে কম পয়সা নেয়, ওটা ঠিক আছে, কিন্তু তোমার কাছে এসে বার্গেনিং হবে, বোঝা যাবে যে বার্গেনিং করতেছে। ওর শুধু একটা জিনিস বুঝলাম যে ও লাইট হতে যেতেছে, এই জ্বালাটা কমতেছে না, জ্বালাটা কমতেছে না, আমাকে শুয়ে পড়তে লাগে, পুয়ার কন্ডিশন হয়ে যায়। কেন শুয়ে পড়তে লাগে? সে শান্তিতে একটু কোয়াইট ওয়ান্টস টু বি রিপোজ এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি ডিজায়ার। আর এলোপ্যাথি ওষুধ কেন খেয়েছে? তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়, ক্যারি ডিজায়ার ফার্স্ট আসে, ঠিক আছে? আর কি হচ্ছে, শান্তিটা ভঙ্গ হচ্ছে, তো ফ্রিডমটা মানে ওরকম আগের মতন করতে পারছে না, ফ্রিলি যে কাজ করতো এটা করতে পারছে না, বারবার এসে ওকে শুয়ে লাগতে, ঠিক আছে? এখন এই মাথা ব্যথা করে ওই সময় কি করতে হয়, যে গিয়ে শুয়ে পড়ে, কেন? ওর फ्रीडमটা শেষ, মানে फ्रीडम खत्म हो रहा है उसका, ठीक है ना? তাহলে quite wants to be and repose and tranquility desire। কেন কেন quite wants to be? আবার ওইটা why, ঠিক আছে? কেন? যে অ্যাঙ্গার ইন্টারাপশন ফ্রম, কি হচ্ছে, রাগ হচ্ছে, আর কি করছে, যে ওরা আমার সঙ্গে কথা না বলে, হ্যাঁ, इंटरप्ट करे, गुस्सा लाद, मैंने खूब गुस्सा हो रहा है इंटरप्ट होने से, और क्या चाहता है कि ये लोग मेरे साथ कुछ नहीं बात कर, चुप रहो, तो हटो यहाँ से, ऐसा। तो एक এই রুব্রিকটা হচ্ছে মোড রিপালসিভ, ঠিক আছে? यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? मोड रिपल्सिव। और की क्वारल, सब मैं गुस्सा कर देती हूँ, ऐसे बोल रहे लड़की। तो क्वारलसम, डिस्टर्ब्ड इफ, देखो तो আছে এই রুব্রিক, quarrelsome, disturbed if, उससे लड़ाई कर लेना, ठीक है? আছে স্যার, quarrelsome আছে তো? quarrelsome disturbed, ठीक, चलो। तो एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, और क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। एंगर इंटरप्शन फ्रॉम क्या होता है? तो बार बार क्या हो रहा है, उसका भाई लोग कुछ ना कुछ उसका इंटरप्ट कर देता है, जैसे पढ़ रही है कुछ बोल दिया, एक तो उसका अपना खुद से जो लिखना चाहती है, पढ़ तो रही है सही, लेकिन जब वो लिखने के लिए शुरू करती है तो कुछ और लिख जाता है, वो उसका गुस्सा है, वो उसमें मतलब उसके कारण से भी गुस्सा है उसमें,
तो एंगर इंटरप्शन फ्रॉम में क्या होता है? इंटरप्शन इज ब्रेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी। उसके जो काम वो कर रहा है वहां पे आके कोई डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना? तो क्या होता है, वो काम उसका जो कर रहा था उसमें एक ब्रेक आ जाता है, रुकना पड़ता है उसको। तो इसी तरह से इसको समझने के लिए और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे चलती हुई चीज को बीच में रोक देना, ठीक है? कोई चीज चल रहा है, वो कुछ काम कर रही है, अब भाई लोग आया बहन लोग आके उसको इंटरप्ट कर दिया, ठीक है से? तो क्या हो गया, वो रुक गया। इंटरप्शन में क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है? तो जैसे पहले हम लोग टीवी में देखते थे ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, मूवी चल रहा है और वो रुक गया, तो उसमें लिख के आ जाता था सॉरी फॉर इंटरप्शन, आ जाता था ना, ठीक है? तो ये चीज, ये देखना है, अर्थात कार्यक्रम बीच में रुक गया, कुछ देर में शुरू होगा, पर उसे दोबारा शुरू होने का समय निश्चित नहीं होता था। टाइम नहीं देता था कि 5 मिनट के बाद शुरू होगा, 10 मिनट के बाद शुरू होगा, है ना? बस सॉरी फॉर इंटरप्शन लिख के रख देता। अब वो कब शुरू होगा, बस आप सोचते रहिए। ये चीज है एंगर इंटरप्शन, रुक जाना। जो चीज चल रहा है वहां रुक जाना। गाड़ी चलाते चलाते अगर उसमें ब्रेक लगाना पड़ जाए तो सीधा उसके मुंह से गाली निकलते। आप कभी देखेंगे, आप हाईवे पे जा रहे हैं और बीच में कुछ आ गया, है ना? गाड़ी चला रहे हैं और बीच में कुछ आ गया, तो क्या होता है, मुख से गाली निकलता है, कुछ बोल देते हैं कि ऐसे आ जाते ये लोग, रोड पे ठीक से चलते नहीं, बीच बीच में ऐसे आ जाते। तो ये उसका क्या हो रहा है, उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक हो रहा है, रुक जाना पड़ रहा है उसको गाड़ी चलाते चलाते, जबकि वो क्या चाहता है, चीज चलते रहे, रुके नहीं, कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए या कोई जानवर आ जाए या ट्रैफिक जाम हो जाए तो उसे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? अभी समझ में आ रहा है? साउंड क्लियर होচ্ছে तो? कुछ ना कुछ वो बक बक करता ही रहता है, किसी भी चीज को लेके, ठीक है? जैसे उसको कुछ आपने डिस्टर्ब किया या इंटरप्ट किया, जैसे कोई मान लो, हाँ, पेशेंट है, अगर मरीज को इम्प्रूवमेंट होते होते रुक जाए तो उसे बहुत बुरा लगता है। कोई पेशेंट है ना, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दवा खा रहा है तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चल रहा है, हाँ ठीक ठाक है, और जैसे ही वो एक जगह में आके रुक गया, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हमें पेशेंट को देखना है। ये पेशेंट फिर आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब देखो फिर से रुक गया, ये बेकार, मतलब उसमें थोड़ा सा उसका गुस्सा दिखेगा, ठीक है? अब वो आराम क्यों नहीं आ रहा, ऐसे बात करेगा। अब यह आराम क्यों नहीं आ रहा है, मतलब अब आपकी दवा तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन अब एक तो आराम हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा, रुक गया आराम होना, ठीक है? ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस जो है वो रुक गया, तब उसको गुस्सा आता है। शांति से बैठी है और भाई बहन हल्ला मचा रहे तो गुस्सा आता है। क्या बोलती है, जब सर दर्द करता है तो मैं शांत से बैठती हूँ, लेकिन भाई बहन सब खेलते रहते, छोटे छोटे हैं, थोड़ा बड़ा सा घर के अंदर ही ग्राउंड है, तो उसी में खेलते रहते, पेड़ वेड़ है उस पर चढ़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, फल लगा हुआ है तो उसमें तोड़ तोड़ के खाते रहेंगे, इस तरह से। कोई अगर सोने वाला है, मैंने ঘুমাতে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছে বিছনাতে, আর কেউ এসে একটু হাল্লা করে দিল, कोई शोर मचाए या बुलाकर जगा दे, কোনো ডাকলো, এই শোন, হ্যাঁ, এই যে बुलाए या शोर मचाता रहे कोई सोने के टाइम, कोई बुला दे, तब इसको इतनी मुश्किल से कैसे बोलता है, ये पेशेंट का रिएक्शन कैसा है, इतनी मुश्किल से तो नींद आ रही थी और सब नींद तोड़ दिया इसने,
क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा गुस्सा कर और जगा दिया। अगर महिला घर का काम कर रही है तो नो काज করতেছে कौन महिला छोड़ दो, कोई भी आदमी एक काम में लगा हुआ है और उसको करे जा रहा है, ठीक है? किसी कारण से उसे बीच में छोड़ना पड़े तो उसे बुरा लगता है। अब जैसे मान लो कि घर में किचन में आदमी आप काम कर रहे हैं, हाँ, आटा ही है, आटा को गूंद रहे हैं या कुछ है, कुछ बना रहे हैं आप, तेल में डाल के रखा है, सब्जी डाल के रखा है और उधर डोरबेल बज गया, तो क्या हुआ? अभी आना होता है इन लोगों को, ठीक है? इस तरह का रिएक्शन होता है, अभी आएगा, अभी देखो डोर बड़ बड़ वो बड़बड़ 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 कुछ ना कुछ उसको मुख से गुस्सा वाला वर्ड निकलता रहे। तो ये है, क्या हुआ? वो जो सब्जी चला रही थी, सब्जी बना रही थी या कुछ छान रहा है या रोटी बना रहा है, चावल बना रहा है, कुछ भी, उसमें क्या हो गया? इंटरप्ट हो गया, रुक गया वो, हाथ चलाना बंद हो गया ना, सब्जी बना रहे हैं तो कुछ भाजा बना रहा है, कुछ तल रहा है, पकौड़ा बना रहा है, जो भी है, तो क्या हो रहा है उसमें? इंटरप्ट हो रहा है, तब गुस्सा आएगा कि कौन आ जाता है अभी इस समय खाना बनाते समय, इस तरह का। किसी कारण से उसे बीच में छोड़ना पड़े तो बुरा लगता है। काम करते समय मेरे बीच में मत आया करो। ये रिएक्शन होगा घर में, आप देखो कि मैं जब काम करती हूँ ना तो बीच में मत आया करो किचन में, या मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना तो बीच में चलना फिरना बंद रखो। पोछा लग रहा है तो आप लोग इधर उधर मत करो, चुपचाप एक जगह बैठो, ठीक है? मत आया करो। जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उसे लग कर एक बार में पूरा कर लेने दो। बीच बीच में अपने नए काम मत बताया करो, ठीक है? इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं नक्श के पीछे, ठीक है? एक बार मैं जो काम कर रही हूँ ना उसमें डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे को पूरा कर लेने दो, फिर कोई नया काम बताना या कुछ बात करना मेरे से। अभी मैं एक काम कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो मेरे को, ठीक है? तो ये चीज है जो इंटरप्ट होता है, उसके काम में ब्रेक नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो वो कर रहा है उसको कंटिन्यू करने दो। अगर रुका तो गुस्सा आता है, ठीक है ना? अगर दोबारा उसका वही कार्य शुरू कर कर भी दिया जाए तो उसका गुस्सा समाप्त नहीं होता है। अगर वो जो काम कर रहा है एक बार आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तब तो गुस्सा तो वही है, लेकिन अगर दोबारा उसने फिर से चलो भाई हो गया, गुस्सा उस्सा कर लिया, फिर काम वो करने लग गया, लेकिन वो शांत नहीं होगा, बोलता रहेगा कि ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें क्या एक रूब्रिक हम लोग लेंगे, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, ठीक है? एंगर इंटरप्शन फ्रॉम और एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, ठीक है? अरे कोई आके बोल देगा अरे यार थोड़ा काम ही बोल दिया तो क्या हो गया, मैं आ ही गया, तो मेरे को जैसे घर में झाड़ू लगा रहा है तो मैं थोड़ा, मेरे को कुछ काम था उस रूम में तो मैं जा ही रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तब भी उसको गुस्सा आता रहेगा, क्यों गए, क्यों जाना, 2 मिनट रुक नहीं सकते? ऐसा अगर आपने उसके साथ कंट्राडिक्ट किया, अगर वो गुस्सा कर दिया, वो पेशेंट तो आप, वो आदमी गुस्सा कर दिया तो आप उसको थोड़ा सा अपना अपना पक्ष भी रखेंगे, और अपना पक्ष रखेंगे तो फिर भी उसको गुस्सा आता रहेगा और गुस्सा करता रहेगा, ठीक है ना? अपना विरोध या उसकी बात को कोई काटे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसका विरोध करे या उसकी बात को काटे कि नहीं ऐसे कैसे, भाई तो थोड़ा सा तो काम था मेरे को, ऐसे झूठ मूठ का तुम हल्ला करते रहते हो, है ना? तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो वो खुश रहेगा। एंगर स्टैब, क्या करता है मन, गुस्से में क्या मन करता है? एंगर स्टैब्ड एनीवन सो एंग्री दैट ही कुड हैव, ना मार दूं ऐसे, तुम लोग इस तरह से मेरे को डिस्टर्ब करता है। एंगर स्टैब्ड मतलब चाकू मार देना, स्टैबिंग क्या होता है? चाकू मार देना, ठीक है ना? एंगर स्टैब्ड एनीवन
सो एंग्री दैट ही कुड हैव, उसका गुस्सा इतना तीव्र आता है कि उसे लगता है कि जो भी उसके सामने आए उसे वो जान से मार दे। ठीक है, जान से मार देने का मतलब। আরে শুভাশিস মানে ১ ঘন্টা হয়ে গেল, আসবে না? ঘুমাচ্ছে নাকি? কনসেনসি কনসেন্স কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্ট স্টাডিং। ঠিক আছে? রিডিং, হুম? এই রুব্রিকটা হবে। कंसल्टेशन डिफिकल्ट स्टडिंग, पढ़ते समय या किसी चीज को समझते समय उसका ध्यान नहीं लग पाता है और इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, ये एक रूब्रिक है नक्श की पढ़ाई करते समय या काम करते समय, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना चलता रहता है, इस काम के बाद ये करना है, तो वो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग। ठीक है, स्टडिंग में क्या होता है, आप ध्यान दे के पढ़ना है ना, उसी पे ध्यान देना। रीडिंग के लिए क्या करते हैं को वही करते हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, उसका दिमाग शांत रहता ही नहीं है, एक के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। ठीक है ना, इसीलिए एक अपना ही डॉक्टर ही है, वो अपनी वाइफ को ऐसे बोलता है कि तेरा एक काम खत्म नहीं होता है, दूसरा काम ढूंढ लेता है। मतलब कि वो जो काम अभी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, चल ही रहा है, लेकिन अब उसको एक नया काम चाहिए। नक्स के पेशेंट को क्या चाहिए, जो एक लेवल का काम उसने जैसे आउट ऑफ 10 8% का उसने काम फिनिश कर लिया, एक टारगेट अचीव कर लिया। अभी वो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 9% करना है इसको, 90% मेरे को इसमें परफेक्शन लाना है। तो 80% तक का परफेक्शन को वो अच्छे से खत्म कर दिया काम। इसीलिए नक्स के दिमाग को शांति नहीं मिलता, जबकि वो रेस्ट डिजायर में है, दिमाग को रेस्ट नहीं देता है। एक काम चल ही रहा है कि दूसरा काम उसके दिमाग में चलने लगता है, इसीलिए बीमार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नक्स बीमार क्यों होता है, रेस्ट डिजायर है पर रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसीलिए बोलता है डॉक्टर साहब शांति चाहिए, दिमाग शांत नहीं होता है, ऐसी बातें करें। ठीक है, जैसे आप उसके उसके बातों को बात करते रहेंगे, उसको कंट्राडिक्ट करेंगे तो उसको कैसा फील होता है, हाँ? क्यों कंट्राडिक्शन, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम। तो इसी के साथ जो रूब्रिक वाई जो है, डेलूजन इंसल्टेड ही इज, उसको लगता है कि मेरे का इंसल्ट कर दिया। इसलिए मैं बताता हूँ ना कि आप लोग को ये समझना है कि रूब्रिक को, एक रूब्रिक हमने लिया तो उसके फिर दूसरा रूब्रिक जो उससे कनेक्टेड है, वो क्यों ये रूब्रिक उस तरह से काम कर रहा है, ये रूब्रिक मैंने क्यों लिया, तो उससे रिलेटेड रूब्रिक वाई आई हैव टेकन रूब्रिक दिस रूब्रिक, तो उसके लिए क्या होगा, उसमें वाई क्या लगेगा, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम से क्या रूब्रिक लगेगा, क्यों गुस्सा होता है इसको, बिकॉज डिलूजन इंसल्टेड ही इज, उसको लगता है कि ये मेरे से इस तरह का बात करके मेरा इंसल्ट कर। ঠিক আছে? হুম? ঠিক আছে? जैसे उसकी बेइज्जती कर दी गई हो, इस बीमारी की वजह से कोई इज्जत नहीं कर रहा कि अरे ये तो दिन भर ऐसे सोती रहती है, कुछ काम हम नहीं करती है, क्योंकि वो बीमार हो गया तो नेचुरली उसको नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगता है कि ये मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। जब से बीमार पड़ा हूँ दुकान में जाना भी कम हो गया है, लोग भी अब ज्यादा पूछताछ नहीं करते, कोई पूछता भी नहीं है। पहले जब दुकान जाता था तो 10 लोग नमस्ते, हाय, हेलो हो जाता था। अब जब से बीमार हुआ है, थोड़ा दुकान या कहीं बाहर ऑफिस ऑफिस जाना थोड़ा कम हो गया है। तो शुरू-शुरू में लोगों ने पूछा, बाद में लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया। बात ही नहीं करते अब मेरे से। ये जो नई बात करते हैं, मैं बीमार होने के कारण से लोग, इसको लगता है कि यार मेरे से जो पहले लोग खुल के बात करते थे, मेरे से अच्छे से मिलते-जुलते थे, वो लोग मेरे से अब बात नहीं कर रहे हैं। तब इसको फ़ील होता है कि मैं
मेरे को इंसल्ट फील हो रहा है, ये लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है से। एंड डिल्यूजन पुअर, नक्श का बहुत मेन रूब्रिक है। नक्श का क्या होता है डॉक्टर साहब, अभी अभी ऐसा, अभी मेरा ये हाल है, ठीक है ना, अभी मेरा ये हाल है, मैं ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ। और सीधा पेशेंट यही बोलेगा कि डॉक्टर साहब अभी मैं ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ, अभी ये हाल है, तो आगे क्या हो, आगे तो मैं एकदम बिस्तर में पड़ जाऊंगा, चलना फिरना बंद हो जाएगा मेरा, ये डर मेरे को लगा रहता है डॉक्टर साहब। तो पुअर से कहाँ जा रहा है, डिल्यूजन पुअर, है ना, कि अभी ये हाल है, तो आगे कैसा, आगे तो मैं एकदम बिस्तर में पड़ जाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, अपना काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब किसी तरह से मैं स्टूल के लिए बैठता हूँ, फिर कुछ पकड़ के खड़ा होता हूँ। अगर यही कंडीशन रहा तो मेरा उठना बैठना बंद हो जाएगा। तो मेरे को यही डर लग रहा है डॉक्टर साहब कि मैं लैट्रिन में बैठूंगा कैसे, ठीक है। तो ये पुअर से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, पोवर्टी में। डिल्यूजन पुअर में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ कम है, जो पहले जैसा नहीं है, जिसके पास किसी चीज की कमी हो, जैसे मेरी नजर कमजोर है, मैं देखने में उतनी सुंदर नहीं लगती हूँ, आमदनी बहुत कम है। ये जो आप अभी जो केस बताया ना पेशेंट का, कि मेरे को चक्कर आ जाता है, मेरे को बैठना पड़ता है, सो जाना पड़ता है ना, तो ये चीजें सब पुअर में। आमदनी बहुत कम है, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ताकत नहीं है, मेरा दिमाग कमजोर है, ये सारे बात पुअर में आएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने आप में किसी चीज की कमी की महसूस होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप में कमी महसूस होने लगता है कि नहीं कुछ तो कम है, ठीक है। और और पॉवर्टी क्या है, फियर पॉवर्टी, और भी पुअर हो जाएगा, और भी कंडीशन खराब हो जाएगा। तो नक्श का यही होता है डॉक्टर साहब, अभी तो चलो मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ, अब मेरे को डर लग रहा है अगर यही कंडीशन रहेगा तो मैं तो अंधा ही हो जाऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा, तब क्या होगा डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये पॉवर्टी वाली बात है, पॉवर्टी में बिकम पुअर, जो अपने आप को अमीर समझता है उसी को गरीब होने का डर लगता है। जब तक आपके पास कुछ है तभी तो आप अपने आप को कुछ समझते हैं ना। अभी तक पैर चल रहा है, लेकिन अभी भी है पैर मेरे पास, और चलना घुटना दर्द ऐसे ही रहा तो क्या होगा, बैठ जाना पड़ेगा, चल नहीं पाऊंगा। तो गरीब को पुअर होने का डर होता है, जिसके पास कुछ रहता है उसी को उसका कम हो जाने का डर होता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या कमी, उसको किस बात का डर है, चलो जैसे रोज कमाते खाते हैं बस। जो अपने आप को अमीर समझता है उसी को गरीब होने का डर लगता है। जैसे कुछ सुंदर स्त्री जाहिर है अपने आप को सुंदर समझेगी, अब उसके चेहरे पर कोई इरप्शन आ गया, जैसे एक्ने वगैरह हो गया, तो उसको डर लगने लगता है कि उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाए, चेहरे पे कोई निशान न पड़ जाए। ऐसा बोलते हैं ना पेशेंट, डॉक्टर साहब ये छोटा सा है, आगे चल के और ज्यादा हो जाएगा, कैसा लगेगा डॉक्टर साहब, एकदम खराब लगेगा, मेरे को तो इसी बात का डर है, आप कोई दवाई दो मेरे को, ये ठीक हो जाए मेरा। डॉक्टर साहब अभी तो सिर्फ घुटने में सूजन है, दर्द महसूस हो रहा है, मुझे तो अब डर ही लगने लगा है कि चलना फिरना ना मुश्किल हो जाए। डॉक्टर साहब बिस्तर पकड़ लिया तो कौन पूछता है, मैं वो सिचुएशन नहीं चाहता हूँ, आदमी अपना इंडिपेंडेंट, अपना काम खुद करे। तो ये जो पेशेंट बोलते हैं ना कि अपना काम आदमी को खुद करना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट है, एक रूब्रिक आता है ना इंडिपेंडेंट, ये खुद करे, चलता फिरता चला जाए, मतलब बिस्तर में नहीं पड़े। बहुत लोग पेशेंट बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, आदमी को ना बिस्तर में पड़ के नहीं मरना चाहिए, चलते फिरते में मर जाए वो ज्यादा अच्छा है, बोलते हैं ना पेशेंट इस तरह से।
अपना शरीर ठीक रहना चाहिए। मेरा वजन बढ़ने लग रहा है, मैं मोटी ना हो जाऊं, सब शरीर खराब हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये सारा छोटा छोटा बात है। डॉक्टर साहब, मैं इतने लंबे लंबे बाल थे, रोज इतने ज्यादा झड़ते हैं, एक बार कंघी मारो 10-12 बाल उसमें निकल आते हैं। यही हाल रहा तो एक दिन गंजा हो जाऊंगी। डॉक्टर, औरत का तो बाल ही ठीक लगता है ना। अभी आया था एक पेशेंट, लेकिन मैंने उसको नक्स नहीं दिया, कुछ और दिया, याद नहीं आ रहा क्या दिया उसका। बाल गिर रहा है उसका। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे ही रोज रोज कुछ लगा रहा तो मेरी सेहत ही खराब हो जाएगी। यहाँ पर रोगी को अपने किसी चीज पर नाज होना चाहिए। मतलब उसके पास कुछ है, वो वेल्थ है उसके पास, उसमें कमी जब आएगा, उसमें जब कम होने लगता है, तब वो डर उसके दिमाग में आ जाता है। तो ये फियर पॉवर्टी है, उसी चीज के कम होने का डर होना चाहिए। आपके पास है, उसकी कमी होने का डर होना चाहिए। पॉवर्टी जो आप पोजेस कर रहे हैं, आपके पास है, उसको उसमें जो कमी आएगी उसका डर होना शुरू अगर आता है, तभी आप पॉवर्टी में जाएंगे। फियर पॉवर्टी। चलो, हाँ, বন্ধ করি, 1 ঘন্টা হয়েছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ।